Now we are going to study about primate behavior, right? So we know that primate has four important members: prosimian, monkey, ape, and man. So in this topic, we will try to understand about social behavior of prosimian, monkey, ape, and man also. But our focus on non-human primate means in this topic, we mainly focus to study about social behavior of non-human primate, because on the basis of study of social behavior of non-human primate, we are able to understand about evolution of social behavior of our ancestor at the time of prehistory, at the time of the course of human evolution, how our ancestor were behaving. So we can understand about that important aspect related to human being on the basis of study of social behavior of prosimian, monkey, and ape, right? But in this topic, we study primate behavior, right? क्लियरली आपको समझ लेना है कि हम लोग प्राइमेट बिहेवियर पढ़ेंगे, लेकिन our main focus on non-human primate, right? Here, our main focus on the behavior of non-human primates, and on the basis of that, we are able to understand about evolution of human behavior, right? Human behavior यानी हम एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर करते हैं, ये कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ behavior of non-human primates. Behavior of non-human primates means we are going to understand about some important behavior of prosimian, right, monkey, and ape, right? But before we are going to study about that topic, first you can understand how primatologists study about primate behavior of non-human primate. So primatologist here you can understand about the work of primatologist, right? कैसे primatologist जो है स्टडी करते हैं इनके बिहेवियर को, तो दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वन थिंग, दे डू फील्ड वर्क इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, राइट? यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में कैसे नॉन ह्यूमन प्राइमेट जो है बिहेव करते हैं, इसका वो स्टडी करते हैं। और दूसरा, ये लेबोरेटरी में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके ऊपर, है ना? जैसे आपने सुना होगा कि एप को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कल्चर वो डेवलप कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो दैट इज द मोड ऑफ स्टडी ऑफ primate behavior, especially study of the behavior of non-human primate. So when primatologists observe about the behavior of non-human primate in their natural environment, so they found some important aspect related to their behavior. So first important thing in their behavior, that is sociality, है ना? यानी sociality is main mode of primate behavior. So sociality is very important for the understanding of primate behavior. Primate is a social animal. So primate adapt their environment to their social behavior, right? यानी सोशल बिहेवियर के माध्यम से ही वो अपने जो उनके इन्वायरमेंट हैं उसको एडेप्ट करते हैं। तो सोशलिटी का क्या क्या बेनिफिट है, मीन्स कि
Sociality means here you have to study about social grouping, and social grouping is main mode of primate behavior. यानी primates member live in a social group. तो सोशल ग्रुपिंग जो है और सोशल ग्रुपिंग के माध्यम से ही ये एडेप्टेशन करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो इसका क्या बेनिफिट है, राइट? तो सोशल ग्रुपिंग का बेनिफिट क्या है? और सोशल ग्रुपिंग जब आप किसी भी एनिमल को पढ़ते हैं कि जो सोशली ग्रुपिंग में रहता है, सोशली बिहेव करता है, तो वन इंडिविजुअल हाउ बिहेविंग विथ अनदर इंडिविजुअल, that is very important in the course of social grouping. And therefore, when we study about the primate behavior, we have to give attention about that important point. What is the benefit of social grouping in primates, right? So first important benefit related to social grouping, that is food availability, है ना? ये इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि ये जो प्राइमेट मेंबर है ये क्या करते हैं? फूड गैदरिंग करते हैं, राइट? तो इफ दे डू फूड गैदरिंग, राइट, और हंटिंग, राइट, तो इफ दैट वर्क was done by social group, by a group of individuals, so then the food amount is increased due to that behavior. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप सोशल ग्रुपिंग में रहते हैं तो इससे बेटर डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर, यानी प्रीडेटर जो अटैक है, यानी जो दूसरे एनिमल इन पे अटैक कर सकते हैं उसकी अगेंस्ट जो है ये बेटर डिफेंस मैकेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं और इन्होंने किया है, और दैट ड्यू टू देयर सोशल ग्रुपिंग. And third important thing is that reproductive advantage, right? That is very important if you want to understand about the importance of social grouping or social behavior of primates. So if we observe about the primate members, we find that when they live in a very large group, so they have more chance for reproduction and more chance to reproduce with dominant male or female. तो ये रिप्रोडक्टिव जो इनके पास चांस है उसको बढ़ाता है, और रिप्रोडक्टिव चांस को बढ़ाता है तो एवोल्यूशन के क्रम में, सर्वाइवल के क्रम में reproductive advantage, the role of reproductive advantage is very important, and therefore that social grouping has importance for the development of reproductive advantage in non-human primates. और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है कि बेटर चाइल्ड केयरिंग एंड रियरिंग, है ना? ये बेटर हो जाएगा, यानी चिल्ड्रन का केयर करना दैट इज ऑल्सो वेरी टफ वर्क in primate. So if primate live in a social group, so it has advantage, and therefore first important aspect related to primate behavior, that is sociality is main mode of adaptation of primate members with their environment, and it has some important benefit. So first important thing you have to understand that thing. Second important aspect related to that, that is a strong
bond between mother and children, right? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी प्राइमेट के सोशल बिहेवियर को आप देखेंगे तो ये पाया गया कि मदर और चिल्ड्रन के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है प्राइमेट में। वाई दैट इज प्रेजेंट इन प्राइमेट? so we already discussed that primate has long gestation period and primate has long maturation period। तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड भी है और लॉन्ग मेचुरेशन पीरियड भी है। तो children depend on their mother for their survival in a very long time। तो बहुत लॉन्ग समय तक चिल्ड्रन अपने सर्वाइवल के लिए अपने मदर पर डिपेंड होते हैं। और मदर पर डिपेंड होते हैं तो इसलिए यहाँ बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रन बहुत स्ट्रांग होता है। एंड जीन गुडॉल ऑल्सो फाउंड दैट कि जब भी अगर कोई चिंपांजी का बच्चा घायल हो जाता है तो उसकी जो मदर जो है उसकी केयर करती है और उसमें सेंटिमेंटल अटैचमेंट भी जेन गुडॉल ने पाया था। और इसलिए दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पॉइंट यू कैन ऑब्जर्व इन मैन आल्सो कि ह्यूमन में भी आप जो है इस चीज को देख सकते हैं कि बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रन बहुत स्ट्रांग होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्राइमेट बिहेवियर, दैट इज dominant hierarchy, right? So what is this, right? So I already said that primate live in a primates live in a group, right? और अगर ग्रुप साइज ये बड़ा होगा, है ना, जैसे जैसे ग्रुप साइज लार्ज होगा तो एक प्रॉब्लम जो एट रैंडम क्रिएट हो जाता है कि हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन, राइट? क्योंकि अगर ग्रुप साइज अगर लंबा है, बड़ा है, तो ग्रुप साइज अगर आपका बड़ा है तो ऐसा संभव हो सकता है कि फाइटिंग among the members, right? among the members। तो अगर मेंबर्स ही आपस में फाइट करने लगे तो हाउ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन among the members? तो फॉर दैट there there is a dominant hierarchy that is very unique behavior among non-human primates। They develop an important concept that is a dominant hierarchy, means they have development of their leaders, right? और इनके जो ग्रुप होते हैं उसमें एक लीडर का डेवलपमेंट हो जाता है और यह लीडर सामान्यतः जनरली क्या होता है कि डोमिनेंट मेल होता है, राइट? और इस डोमिनेंट मेल का वर्क क्या है कि मेंटेन डिसिप्लिन इन ए ग्रुप। ये अपने ग्रुप में डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। इफ टू और मोर देन टू मेंबर्स of a group fighting with each other in this condition, that dominant male take decision what to do and how to solve that problem, right? तो एक तरह से, और ये डोमिनेंट हायरार्की ये ओपन है, फ्री है इनमें कि दैट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, राइट? जो इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल की एबिलिटी से ये डिसाइड होता है। और इंडिविजुअल की एबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? तो इंडिविजुअल की एबिलिटी डिसाइड होगी इसके फूड गैदरिंग कैपेसिटी से, राइट? फूड गैदरिंग कैपेसिटी। सेकेंड, डिफेंस
अगेंस्ट प्रीडेटर, यानी प्रीडेटर अटैक हो रहा तो उसकी अगेंस्ट ये डिफेंस कैसे मैकेनिज्म डेवलप करता है। और तीसरा कि अगर फाइटिंग अमॉन्ग द मेंबर्स तो हाउ ही टेक डिसीजन, यानी डिसीजन making capacity that is also important for dominant male, right? So when Jane Goodall did her fieldwork in Africa, she found that when dominant hierarchy maintain in a group, so there is a peace in a group. But when dominant hierarchy break, there is violent fighting among the member of group. So the role of dominant hierarchy is very, very important among primate members, and that is an important aspect of primate behavior. Another important aspect related to that is reproductive behavior, right? Reproductive behavior, and that reproductive behavior is very important for the survival of a group. When primatologists study about reproductive behavior of non-human primates, so they found two types of reproductive behaviors in non-human primates. First, here, if you see about the reproductive behavior of male, है ना? So reproductive behavior of male is quite different from the reproductive behavior of females. So here we can understand about the reproductive behavior of male and female. So male, right? Sexual selection, how male select their sex partner, है ना? Sexual selection means क्या कि सेक्स पार्टनर का सिलेक्शन कैसे करते हैं. What was the mechanism for selection of sex partner in non-human primate? Basically here I am talking about prosimian, monkey and ape. तो प्रोसिमियन मंकी और एप में सेक्स पार्टनर का सिलेक्शन कैसे होता, हाउ दे सिलेक्ट देयर सेक्स पार्टनर. तो मेल क्या करता है, मेल का मैकेनिज्म क्या है, एस्टैब्लिश डोमिनेंस एमोंग मेल्स, राइट. और ये कैसे एस्टेब्लिश होता है, थ्रू फाइटिंग. ये आज भी आप देखोगे कि मैन में भी क्या होता है कि अगर मैन के अगर सोशल बिहेवियर को या सेक्सुअल सिलेक्शन को आप समझने का प्रयास करें और जितने भी टीन एजर हैं तो उनके अगर सेक्सुअल बिहेवियर को आप समझने का प्रयास करें तो ज्यादातर कॉलेज, ज्यादातर स्कूल में जो टीन एजर आपस में फाइटिंग करते हैं उसमें एक इशू यह भी होता है, अगर एक ही फीमेल को एक से अधिक मेल चाहते हैं तो आपस में वो फाइट करेंगे. तो दैट इज प्राइमेट बिहेवियर. यानी प्राइमेट बिहेवियर में फर्स्ट क्या है कि मेल जो है हाउ टू सिलेक्ट देयर सेक्स पार्टनर, दे ट्राई टू फाइट. और फाइटिंग के माध्यम से वो क्या करते हैं कि अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर देते हैं. जैसे क्या है कि जिन गुडोल ने जब चिंपांजी का स्टडी किया बिहेवियर का, तो सी फाउंड दैट कि फाइटिंग के माध्यम से जो मेल जो है, कोई भी मेल जब अपने डोमिनेंसी को स्टेबल कर लेता है, यानी स्वयं को डोमिनेंट के रूप में स्टेबल करता है, तो इन चिंपांजी डोमिनेंट मेल हैज राइट टू डू सेक्स विथ ऑल फीमेल्स. यानी जितने भी ग्रुप के फीमेल हैं वो सारी फीमेल से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का राइट केवल और केवल डोमिनेंट मेल के पास होता है, राइट. डोमिनेंट मेल जो होता है वो एक तरह से
अपने ग्रुप के सभी फीमेल के सेक्स को सेटिस्फाइड करता है, अदर मेल only can make sexual relationship with any female of that group by the permission of the dominant male, right? तो सबसे पहले जो होता है कि वो डोमिनेंट मेल के रूप में स्वयं को एस्टेब्लिश करना होता है, तभी सेक्सुअल रिलेशनशिप आप फीमेल के साथ बना सकते हैं। और दैट इज प्राइमेट बिहेवियर, दैट टाइप्स ऑफ बिहेवियर आल्सो प्रेजेंट इन मैन आल्सो, यानी मैन में भी ये बिहेवियर पाया जाता है। तो एक तो मेल में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है, सेक्सुअल बिहेवियर होता है, क्योंकि वो ताकत का इस्तेमाल करेगा और ताकत का इस्तेमाल करके फिर अपने आप को डोमिनेंट के रूप में इस्टेब्लिश करेगा। सेकंड क्या है कि फीमेल का क्या है, तो फीमेल इज वेरी चूजी, राइट? फीमेल जो होती है वो सेक्सुअल पार्टनर के संदर्भ में, सेक्सुअल पार्टनर है ना, के संदर्भ में बहुत चूजी होती है ना। कि आप देखोगे कि सेक्सुअल पार्टनर की जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जिसमें फीमेल के चीजों को अगर आप देखें, तो प्राइमेट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन ह्यूमन प्राइमेट, बट दैट बिहेवियर आल्सो फाउंड इन ह्यूमन फीमेल, राइट? क्योंकि ह्यूमन फीमेल भी अपने सेक्स पार्टनर को लेकर के बहुत ही सिलेक्टिव होती है, बहुत चूजी होती है। क्यों चूजी होती है, राइट? एक तो ये पहलू है। सेक्सुअल इंटरकोर्स का रिजल्ट क्या होता है कि प्रेगनेंसी होती है, और प्रेगनेंसी का बर्डन जो होता है, ये टोटल बर्डन फीमेल उठाती है, ना कि मेल उठाता है। ठीक है, यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल जो है फिजिकली जो है उसकी एबिलिटी, जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और शी डिपेंड ऑन देयर मेंबर्स एंड शी डिपेंड ऑन मेल फॉर देयर फूड सप्लाई आल्सो। तो फूड सप्लाई के लिए भी वो अपने मेल पर डिपेंड हो जाती है। एक तो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का टोटल बर्डन जो है वो फीमेल को ही उठाना पड़ा। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि फीमेल को सिक्योरिटी चाहिए, और ये सिक्योरिटी नॉट ओनली फॉर ह्यूमन फीमेल बट आल्सो फॉर नॉन ह्यूमन प्राइमेट फीमेल। तो सिक्योरिटी भी उसे चाहिए। और तीसरा चीज ये है कि फीमेल किससे रिप्रोडक्शन करे, राइट? तो जो नेचुरल सिलेक्शन इज इन द फेवर ऑफ डोमिनेंट मेल, यानी आप देखोगे कि फीमेल जो है डोमिनेंट मेल को ही अपना रिप्रोडक्टिव पार्टनर के रूप में, अपना सेक्सुअल पार्टनर के रूप में सिलेक्ट करती है। क्योंकि उससे फीमेल को क्या क्या मिलता है, तो फीमेल को फूड का सप्लाई बेहतर होगा, फीमेल को सिक्योरिटी मिलेगा, फीमेल को शेल्टर मिलेगा, फीमेल चूंकि वो डोमिनेंट मेल है तो उससे जो बच्चा पैदा होगा, जो चाइल्ड पैदा होगा, उसमें वो डोमिनेंसी का कैरेक्टर भी आ सकता है। और नेचुरल सिलेक्शन भी इसी के फेवर में होता है कि फीमेल मेक सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ डोमिनेंट मेल। तो नॉन ह्यूमन प्राइमेट में डोमिनेंसी डिपेंड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ, एबिलिटी, protection, etc. But in human being, dominancy presently depend on physical strength as well as our economic power, our political power, our social power. But फीमेल जनरली क्या होता है कि अपनी सेक्सुअल पार्टनर के सिलेक्शन में ये बहुत चूजी होती है, बहुत सिलेक्टिव होती है। और सिलेक्टिव होने का कारण हमने आपको बताया। और इसलिए ये सिलेक्टिव क्या है कि फीमेल जो है डोमिनेंट जो मेल है, इसी डोमिनेंट मेल को अपना सेक्सुअल पार्टनर के रूप में सिलेक्ट करती है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है जिसको हम कहते हैं द रोल ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, राइट? तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिक ऑफ मेल एंड फीमेल,
यानी मेल का जो फिजिक होता है वो लंबा चौड़ा और ज्यादा मजबूत होता है और फीमेल उससे छोटी होती है। प्राइमेट में आप देखें तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने इस बात का एनालिसिस किया कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ वी ऑब्जर्व अबाउट द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन प्रोसिमियन, मंकी, एप एंड मैन, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है प्रोसिमियन में ज्यादा, उसके बाद उससे कम मंकी में, उससे कम जो है एप में, और सबसे कम मैन में है। तो मैन में अगर वन मेल वन फीमेल के बीच मैरिज का पैटर्न डेवलप हुआ तो इसका कारण क्या है कि देयर वाज कंटिन्यूअस रिड्यूसिंग ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन मैन इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है जिस ग्रुप में देखा गया है कि उसमें ज्यादा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है तो उस ग्रुप में डोमिनेंट मेल जो है अगर ज्यादा हेवी है तो ज्यादा फीमेल को सेटिस्फाइड करता है। और इसीलिए फीमेल जो है, फीमेल का जो सेक्सुअल सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें लंबे चौड़े जो मेल होते हैं, ज्यादा ज्यादा मजबूत मेल होते हैं, उसको फीमेल जो है अपने सेक्सुअल पार्टनर के रूप में सिलेक्ट करती है। राइट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर रिलेटेड टू प्राइमेट। एंड other important behavior which is related with primate behavior, that is affiliative behavior. Right. Affiliative behavior is also very important behavior of primate member। यानी प्राइमेट जो है इनके बीच अफेक्शन पाया जाता है ना। तो इनके बीच अफेक्शन पाया जाएगा, इनके बीच लव होगा, हगिंग होगी, किशिंग होगी। और सपोज करो कि एक चिंपांजी के ग्रुप में हमने कहा कि जो डोमिनेंट चिंपांजी है वही अपने ग्रुप के फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है। राइट। बट affiliative behavior, right, love affairs that also present in non-human primate। तो सपोज करो कि एक फीमेल ने किसी नॉन डोमिनेंट चिंपांजी के साथ, जो कि चिंपांजी फीमेल है, उसे लव हो गया और डोमिनेंट जो नॉन डोमिनेंट जो मेल है वो भी उससे लव करता है। तो व्हाट हैपन इन दिस कंडीशन? बिकॉज रूल इज दैट ओनली डोमिनेंट मेल मेक सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द फीमेल ऑफ देयर ग्रुप। तो इस कंडीशन में जैसे आप देखोगे कि मैन में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जाति की दीवार है, धर्म की दीवार है। तो कोई इंटरकास्ट मैरिज कर रहा, कोई इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहा, सोसाइटी उसको अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर उसको अपने सोसाइटी से भाग करके विवाह करना पड़ता है। इस तरह का कंडीशन चिंपांजी के बिहेवियर में भी देखने को मिला है कि अगर मेल जो है डोमिनेंट नहीं है लेकिन उसने किसी फीमेल के साथ लव कर लिया, तो लव किया तो इसका मतलब क्या है कि अब उसी उस ग्रुप को छोड़ना पड़ेगा और वो उस ग्रुप को छोड़ के जाते हैं और फिर छोड़ करके जा करके और फिर वो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो दैट बिहेवियर इज प्रेजेंट इन मैन also, and that behavior also present in a non-human primate। Other important thing related to primate behavior that is tool making and using। right। यानी tool making and using that is also very important social behavior of non-human primate। तो कुछ स्टडी में ये पाया गया कि चिंपांजी और मंकी जो है कुछ चीजों को एज ए टूल्स के रूप में यूज करती है, एज ए टूल्स के रूप में यूज करके। लेकिन जनरली कल्चर का फॉर्मेशन जो है, ये कल्चर का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी जो है मनुष्य में है। एंड देयरफॉर यहाँ पर मैन को ही कल्चरल एनिमल के रूप में माना जाता है। एंड देन यू कैन रिमेंबर अबाउट द सम केस स्टडी रिलेटेड टू प्राइमरी बिहेवियर। तो जीन गुडॉल, शी इज वेरी फेमस primatologist and she did case study in बॉम्बे नेशनल पार्क। और उसमें सी
हैड डन ए स्टडी ऑफ चिंपांजी। सेकंड इज डायन फोजी, जिन्होंने जायरे में जाकर के स्टडी किया कि किस तरह से नॉन ह्यूमन प्राइमेट और खास करके एप के बिहेवियर का स्टडी करती हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो है आपका केस स्टडी, और इस केस स्टडी के माध्यम से आप प्राइमेट के बिहेवियर को समझ सकते हैं।